last question, binary operation 1.4 exercise. Okay, 1.4 exercise को complete करेंगे आज. Today I have some work in school also, so I will take class half an hour. Okay, so question 6 was I think completed. This question is completed at the last time. Okay, so next question take बाइनरी ऑपरेशन से रिलेटेड है ना. एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन 7. ओके, is star defined on the set 1 2 3 4 5 by a star b equals to LCM of a and b. ये बाइनरी ऑपरेशन एक बाइनरी, whether it is binary operation or not, suppose our set is 1 2 3 4 5 and definition LCM of a and b. ये बाइनरी ऑपरेशन होना है कि नहीं होना है? Solution of question 7. Okay, here set is what? 1 2 3 4 5. This is our set. Okay, 1 2 3 4 5 and a star b equals to, operation is given like this, a star b equals to LCM of a and b. Whether it is binary operation or not, we have to give justification. Binary operation, how can we decide the given definition or given operation is a binary operation or not? Binary operation, because this is set. Binary operation, given definition, given operation is a binary operation if it connects any two element of the set to a unique element in the set. Means कोई भी दो एलिमेंट ले लो, उसको कनेक्ट करो तो इसी का एलिमेंट होना चाहिए. So whether this is a binary operation or not, मतलब इनमें से कोई भी दो एलिमेंट ले ले और कनेक्ट करे इसी ऑपरेशन से. सो बाइनरी ऑपरेशन होगा कि नहीं होगा? बाय प्रिपरेशन ऑफ टेबल यू कैन सी इट. अगर टेबल बना लेना, स्टार लगा ले, इधर 1 2 3 4 5 लिख दे, इधर 1 2 3 4 5 लिख दे, टेबल बना ले, टेबल की एंट्रीज देखना है. इफ एंट्रीज आर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट देन इट विल बी बाइनरी ऑपरेशन. बट पर्टिकुलरली यू कैन टेल बाइनरी ऑपरेशन होना है कि नहीं होना है. कोई भी दो एलिमेंट ले ले और उसका ये ऑपरेशन लगा दे तो ऑपरेटेड वैल्यू जो आएगा वो इसी का होना चाहिए. सो हियर ए एंड बी, सपोज इफ वी टेक a equals to 2 and b equals to 3, then a star b equals to what? That is 2 star 3. That is LCM of 2 and 3 equals to, what is the LCM of 2 and 3? 2 and 3 का LCM क्या है? 6. So it is, हेलो, 2 and 3 का 6 है ना, तो 6 इसको बिलोंग करता है क्या सेट को? हेलो, no, that is not binary operation. Does not belongs to the set. Does not belongs to the set. Hence, the star is not a binary operation. Okay, simple reason है, ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है. Okay, second question means 8 question 8. See question 8. Star be binary operation on the set of natural number. A set is natural number and a star b equals to SCF of a and b. Is a star commutative associative? Does there exist identity for this binary operation on n means set of natural number. ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या दिया है? SCF दिया हुआ है. सेट क्या दिया हुआ है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर दिया हुआ है. ओके, हियर
set is given as set of natural number. Set of natural number. ये set of natural number given है. Set is given as set of natural number. Clear? You can write like this: set of natural number. Set of natural number. Okay, natural number का set है. और definition क्या है? SCF. So, is star commutative associative, and thus there exists identity for this operation. So यहाँ पर SCF लेने से क्या ये कम्यूटेटिव होना है कि नहीं होना है? बिल्कुल सिंपल है, वेरी सिंपल. SCF of A and B and SCF of B and A तो सेम है ना. For any AB belongs to, इस टाइप से लिखना पड़ता है. फॉर एनी ए बी मीन्स कोई भी नेचुरल नंबर, दो नेचुरल नंबर ले लेते हैं. देन फॉर दिस ए स्टार बी इक्वल्स टू SCF ऑफ ए एंड बी. SCF ऑफ ए एंड बी और SCF ऑफ बी एंड ए सेम है. SCF ऑफ बी एंड ए that is equals to B star A. ये होना ही है क्योंकि SCF of AB and SCF of B सेम चीज है. So SCF of AB means A star B definition and SCF of B and A means B star A. So commutative. Therefore star is commutative. And first and binary and second associative. एसोसिएटिव होना है कि नहीं? सेम प्रोसेस लगाना है. क्या करना है? 3 बार लेना है उसको. ए बी सी लेना है. जस्ट लाइक राइट फॉर एनी ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर. वी सी दैट व्हाट ए स्टार बी स्टार सी, क्योंकि एसोसिएटिव के लिए ये लेते हैं, फिर एक बार यहाँ कॉम्बिनेशन लेते हैं, दोनों सेम होना चाहिए. यहां पर क्या लिखना है? ए स्टार बी मीन्स दिस SCF ऑफ ए एंड बी. ए एंड बी स्टार सी. अब ये ए बी का SCF जो आएगा उसके साथ सी का SCF निकालना है. मीन्स SCF ऑफ ए बी एंड सी, ए एंड बी एंड सी. You can write SCF of A, B and C. Similarly उसमें भी होगा ये. And पहले B and C को कंबाइन करना है. ये इसमें वही लिखना है. A स्टार सेम प्रोसेस SCF of B and C equals to same SCF of A, B and C. सेम है, लिख सकते हैं. B and C का SCF और A के साथ मिला तो A B, बिकॉज इसका और A जो निकला है उसका SCF. सो वी कैन राइट लाइक दिस. देयरफॉर A स्टार B स्टार C, ये जो फॉर्मूला है दिस इज मेन थिंग. ये इस फॉर्मूला को अच्छे से लिखना है. ओके, B स्टार C implies a star is associative. Okay, commutative भी है, associative भी है. Now tell me identity, if there exists identity or not. Identity होना है कि नहीं होना है? Hello, आइडेंटिटी के बारे में पूछा है ना. डज देयर एग्जिस्ट आइडेंटिटी फॉर दिस ऑपरेशन और नॉट? क्यों आइडेंटिटी होगा कि नहीं होगा? बताओ कोई ना कोई. एन एलिमेंट E belongs to N. आइडेंटिटी, व्हाट इज आइडेंटिटी? आइडेंटिटी इस सेट का ही एक एलिमेंट होना है N. An element E belongs to N
will be the identity for the operation star in n if a star e equals to e star a for all a belongs to n. This is the definition of identity. n के अंदर एक एलिमेंट होना है इस टाइप से, then we can say identity element exist. So if set is set of natural number and this is the binary operation, so ऐसा e exist कर रहा है कि नहीं? Just tell me, कोई ना कोई आंसर बताओ कि ऐसा कोई yes or no, ऐसा e है? SCF of a and b, SCF of a and e, a होना है always for any number of natural numbers. Any number मतलब natural number, कोई भी natural number ले लो, जैसे 3 ले लिए, 4 ले लिए, 5 ले लिए, satisfy होना चाहिए. और ये है ऑपरेशन SCF. Whether it exists or not, such type of element or exist or not, tell me. Yes sir. कैसे होगा? Sir. 3 के लिए क्या होना है? Sir 1. 3 स्टार 1 की जगह 1 ले रहे हैं ना, तो क्या ये 3 मिलेगा? SCF निकालना है. 3 और 1 का SCF क्या होता है? SCF of 3 and 1, you know SCF कैसे निकलता है? SCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 का और 3 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर व्हाट क्या है? 1 and 3 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? टेल मी, कोई भी बताओ क्या है भाई? 3 and 1 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, व्हाट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 3 and 1? टेल मी, कोई तो बताओ. हेलो, किसी को नहीं पता SCF क्या होता है? हेलो, 3 and 1 का 1 होना है ना, 3 नहीं होना है ना, तो ये डेफिनेशन कहाँ सेटिस्फाई हो रहा है? अगर e को 1 दिया जाए तो हो रहा है क्या? 3 के लिए किसी भी एलिमेंट के साथ नहीं होना है अगर ये डेफिनेशन रहेगा. SCF of a and b, SCF of a and e, ये होना है, नहीं हो सकता. LCM में होता है 1 and 3 का LCM 3, 5 and 1 का LCM 5, but 3 and 1 का SCF 1. So identity does not exist. Okay, identity exist नहीं है. क्या लिखना पड़ेगा? This relation is not true. This relation is not true for any element of n. Under this operation, इस ऑपरेशन क्या है? This relation is not true for any element of n under the operation star. Therefore, identity not exist. Identity for this operation in set of natural number not exist with respect to this operation. इस operation के लिए identity not exist. Okay. Now, question 1 by 1 question देख लेते हैं. 10, 9 and 10. This question is for only for discussion. Okay. ये discuss करने के लिए 9 and 10. Okay. So see, star is binary operational set of rational numbers, and these are the operations are given 1 2 3 4 5 6. देखो 6 में ऑपरेशन दिया हुआ है. So whether
बाइनरी ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव एंड व्हिच आर एसोसिएटिव. सो सी वेरी केयरफुली, अभी तो हम लोग बहुत सारा पढ़ के आए ना. सो इसमें कौन सा एसोसिएटिव है, कौन सा कम्यूटेटिव है, लिखने का तो है, डिटेल में लिख सकते हैं ना. यू कैन राइट वेरी clearly by step every step. Okay, so here set क्या है, set है ना, set है. so given set is what, set is q, set of rational number, set of rational number. ओके, और फर्स्ट ऑपरेशन ए स्टार बी ओनली डिस्कस करना है बस, और पूरा लिखना नहीं है अच्छे से. ए माइनस बी, फर्स्ट ऑपरेशन व्हाट, ए माइनस बी. ये कम्यूटेटिव होगा, एसोसिएटिव होगा कि नहीं होगा, देख चुके 2-3 बार. टेल मी बस ओनली वेदर इट इज कम्यूटेटिव और नॉट. कम्यूटेटिव एसोसिएटिव दोनों में से कोई होगा. अगर सेट क्या रैशनल नंबर लिया जाए तो यू कैन प्रूव इट. नहीं होना है, ए माइनस बी माइनस ए नहीं होता है. सो फॉर इतना बार लिख दो, फॉर 1/2 एंड 1/3, ये रैशनल नंबर है, सो 1/1 करके लिख रहे हैं, बट 1/2 भी लिख सकते हैं, बिकॉज 1 इज आल्सो ए रैशनल नंबर, 2 इज आल्सो ए रैशनल नंबर, यू कैन यूज इट. बट यस, गिवन सेट इज q, so just for giving answer just take this type of element 1/2. You can also take 1, 2, 2, 3, 4, 5, any number, but 1/2, 1/3 rational numbers, so we are taking the numbers like p by q. So 1/2, 1/2, for 1/2 and 1/3 क्या होगा, 1/2 minus 1/3 is not equals to 1/3 minus 1/2. ये तो very clear है. So not commutative. So not commutative. Not commutative. एसोसिएटिव भी नहीं होगा. यू कैन सी 1 to 3 लेके देख लेते हैं. फॉर 1 to 3, बिकॉज 1, 2, 3 आल्सो रैशनल नंबर्स. ओके, बिलोंग्स टू Q. सो 1, बिकॉज A minus B is there ना, सो 1 star 2 star 3 equals to not 1 star 2 star 3. नहीं है, इक्वल नहीं होगा, देख सकते हैं यहाँ पर. ओके, सो शॉर्ट में डिस्कस कर रहे हैं इसलिए लिख दे रहे हैं. ओके, नॉट एसोसिएटिव. ओके, सेकंड ऑपरेशन क्या दिया हुआ है, जस्ट टेल मी. सेकंड ऑपरेशन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कम्यूटेटिव होना है कि नहीं होना है. ए स्क्वायर बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. Yes, sir. कम्यूटेटिव होना ही है, बिकॉज रैशनल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बोथ आर सेम फॉर सेट ऑफ रैशनल नंबर. सो वी कैन राइट लाइक दिस. This is equals to b square plus a square. A b belongs to Q. So implies B star A. Therefore, the star is commutative. एसोसिएटिव होगा क्या? हेलो, यही ऑपरेशन एसोसिएटिव होना है. फॉर 1, 2, 3, फॉर 1, 2, 3 रैशनल नंबर है सपोज, बिकॉज नॉट को प्रूव करने के लिए एग्जाम्पल सफिशिएंट है. 1, 2, 3 बिलोंग्स टू Q. 1 star 2 star 3 is not equals to 1 star 2 star 3. होना है क्या? नहीं होना है ना. इसकी वैल्यू क्या होना है? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर मीन्स कितना हो जाएगा? 5. सो 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, और इधर 2 स्टार 3 2 स्क्वायर प्लस
3 square, 9, 4, 13, 13 square plus 1 square, different value आएगा, so not equals to, therefore implies a star is not associative. Okay, ये associative नहीं है but commutative है. Third number, a minus b whole square, no, a plus ab, a plus ab. Okay, third number a plus ab, third, a sub b equals to a plus ab. Tell me whether it is commutative or not. हो सकता है commutative क्या कभी? हेलो, कम्पिटेटिव हो सकता है क्या? ये कम्पिटेटिव हो सकता है? For 1 2 belongs to Q, 1 star 2 equals to 1 plus 1 into 2, 1 into 2 क्या हो रहा है 3, and 2 star 1 equals to 2 plus 2 into 1 equals to 4. It is not commutative. 1 2 you can take as a rational number. So a plus ab होता है, इन दोनों का into यहाँ हो जाता है. Okay, so यहाँ पर 1 plus 1 into 2 3, 2 plus 2 into 1 4, implies 1 star 2 is not equals to 2 star 1, implies not commutative. Clear? Similarly, associative होगा क्या? हेलो, कोई भी गेस कर सकते हो associative हो सकता है? हेलो, No, sir. for 1 2 3 we see that short में लिख दे रहा हूँ ना, 1 star 2 star 3 is not equals to 1 star 2 star 3. You can solve it. नहीं है, इक्वल नहीं है, therefore not commutative, is not associative, not associative. Now fourth part, tell me, fourth में क्या दिया है? a minus b whole square, is it commutative or not? a star b equals to a minus b whole square for all ab belongs to q. This is given operation. So ये commutative हो सकता है? हेलो, Yes, sir. बिकॉज क्या होता है राइटिंग, ये भी लिख सकते हैं ना इसको, b माइनस ए का होल स्क्वायर, दिस कैन बी रिटन लाइक दिस, a माइनस बी का होल स्क्वायर को क्या किया, अंदर ही b माइनस कॉमन ले लिया. नाउ जैसे हम स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये b माइनस ए का स्क्वायर हो जाएगा. सो ये क्या हो गया, b स्टार, a star b equals to b star, implies star is commutative. एसोसिएटिव होगा क्या? हेलो, एसोसिएटिव हो सकता है फॉर 1 2 3, यही एलिमेंट ले लेते हैं. सो 1 star 2 star 3 is not equals to 1 star 2 star 3. होना है क्या? नहीं होना है ना. 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर 1, यही तो करना है. तो 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1, 1 और 3 का 2, 4 हो जाएगा इधर राइट साइड में. 2 माइनस 3 का स्क्वायर क्या होगा 1, 1 और स्टार 1 0, एक तरफ 4 एक तरफ 0, नॉट इक्वल. देयरफॉर implies star is not associative. Okay, now fifth operation is what? Fifth is AB by 4. AB upon 4 for all AB belongs to Q, set of rational number. AB belongs to Q. Tell me, चलो बोलो फटाफट क्या होगा ये कॉम्पिटेटिव एस्टेटिव में से दोनों है कि एक ही है?
हेलो, दोनों है सर। दोनों है ना, ये तो बिल्कुल सिंपल है, ऐसा लिखना है बस कि फॉर एनी ए बी बिलोंग्स टू क्यू, कोई भी दो रैशनल नंबर के लिए वी नो दैट लिख देना है, वी नो दैट ए बी इक्वल्स टू बी, बिकॉज commutativity of for multiplication is whole in set of rational number. So for any AB belongs to Q, we know that AB equals to BA. Then अब लिख सकते हैं A स्टार B equals to AB by 4 होता है, इसी को लिख देंगे BA by 4 और ये हो जाएगा B स्टार A, implies star is commutative. Associative also you can see. Also we see that for A, B, C three elements of rational number का 3 elements ले लिए, we see that for this क्या होता है A स्टार B स्टार C इक्वल्स टू, पहले यहाँ ऑपरेशन लगेगा तो क्या बन जाएगा AB by 4 स्टार C, अब क्या होगा ये A के जगह ये B के जगह, सो क्या लिखना है अभी AB by 4 into C upon 4, AB by 4 into C upon 4, AB by 4 होता है, so this into this by 4, so ABC by 16, ABC by 16, also A star B star C इक्वल्स टू क्या लिखना है A स्टार BC by 4, अब इसका BC by 4 होगा डेफिनेशन से, सो अब इसको जब मिलाएंगे तो क्या होगा, फिर से ऑपरेशन लगाएंगे तो A इंटू BC by 4 अपॉन 4, दिस इज इक्वल्स टू ABC by 16, both are same, which implies that star is associative. So this is both commutative and associative. And last one is what? AB square. So last one क्या होना है कि नहीं होना है? Tell me. AB square. This is given. ये associative commutative होगा? Hello. देखो commutative होना है कि नहीं ये? क्या लगता है कम्यूटेटिव होगा? हेलो, टेल मी, कोई ना कोई बोलो, नहीं है ना? क्या करें इसके लिए, क्या लिखना है ना, कुछ क्या लिखना है? कोई दो रैशनल नंबर ले ले, फॉर 4 and 5 ले लेता हूं, ये भी तो रैशनल नंबर है, क्या होगा 4 स्टार 5 इक्वल्स टू क्या होना है, स्मॉल नंबर ले लेते हैं ना, 4 5 ही ले लेते हैं, ठीक है, क्या होना है 4 इंटू 5 स्क्वायर, 4 इंटू 5 स्क्वायर 100 ना, एंड 5 स्टार 4, 5 इंटू 4 स्क्वायर 80, AB स्क्वायर, इसका स्क्वायर होता है, इसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 इंटू 400 एंड 4 का स्क्वायर 16 इंटू 5 80, implies 4 star 5 is not equals to 5 star 4, implies star is not commutative. लास्ट वन एसोसिएटिव भी नहीं है क्या एसोसिएटिव? नहीं होगा एसोसिएटिव. आल्सो फॉर एनी के जगह पे अभी ये पर्टिकुलर एग्जांपल देना है ना, सो फॉर 1 2 3 स्मॉल नंबर ले लो, क्या होगा 1 स्टार 2 स्टार 3 इज नॉट इक्वल्स टू 1 स्टार 2 स्टार 3. दिख भी रहा है नहीं होगा, इसको करने से भी देखोगे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड
अनइक्वल आएगा, implies star is not associated. ओके, ये डिस्कशन हो गया. अब देखो क्वेश्चन 10 में क्या लिखा हुआ है, इसी में लिखा हुआ है फाइंड व्हिच ऑफ द ऑपरेशन गिवन अबव हैज आइडेंटिटी. ये जो ऑपरेशन दिया हुआ ना, अभी हमने जितने भी कितने 6 ऑपरेशन के लिए सॉल्व किया, कम्यूटेटिव एसोसिएटिव. सो किसी में कम्यूटेटिव है, किसी में एसोसिएटिव है, किसी में दोनों है, इस टाइप का है ना. नाउ क्वेश्चन 10, फाइंड व्हिच ऑफ द ऑपरेशन गिवन अबव हैज आइडेंटिटी. टेल मी, 1 मिनट टाइम ले लो, तुम लोग डिस्कस करो और बताओ क्या है. किसी भी ऑपरेशन के बाद जो क्वेश्चन दिया है ना, इसमें जो कितना 6 ऑपरेशन जो दिया हुआ है, किसी में भी आइडेंटिटी का एग्जिस्टेंस हो सकता है क्या? ऐसा लग रहा है? जस्ट थिंक इट, सोचो इसके बारे में. किसी भी ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी का एग्जिस्टेंस हो सकता है क्या? आइडेंटिटी मीन्स एक ऐसा एलिमेंट मिलेगा E. So A star equals to A equals to E star A. है क्या आइडेंटिटी? हेलो, ऐसा लग रहा है? किसी में भी नहीं है. पहला ऑपरेशन क्या था? A माइनस बी, A स्टार B. सो A स्टार E इक्वल्स टू A होना है. A star equals to A होना है means what? A star E means A minus E. First definition A minus B. So A minus E equals to A. Clear? ये हो रहा है. आइडेंटिटी होगा, दोनों होना चाहिए. कैसा? ये भी E माइनस ए इक्वल्स टू ये होना चाहिए. नहीं हो सकता, बिकॉज दोनों ट्रू होता है ना. ऐसा होना चाहिए ना, E स्टार ए. अब देखो यहां पर लिखूंगा A माइनस ई और इधर लिखूंगा E माइनस ए. अब इसी को अगर देखें तो इस दोनों को सॉल्व करो तो क्या मिलता है? E इक्वल्स टू 0. इन दोनों को सॉल्व करो तो क्या मिलता है? E इक्वल्स टू 2a. यूनिक नहीं है, सो नॉट एग्जिस्ट. सिमिलरली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला जो ऑपरेशन है, यहां पर अगर ए स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए. और इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होना चाहिए. इन दोनों को सॉल्व करें और इन दोनों को सॉल्व करें. नेचुरल रैशनल नंबर नहीं आएगा. सॉल्व करके देखेंगे, किसी में भी एग्जिस्टेंस नहीं है. सो यू कैन write it for all of the operation there exists no E such that the relation A star E equals to A equals to E star A for all A belongs to Q holds. There exists no element in Q such that there exists no element in Q. Q में ऐसा कोई element नहीं है such that no element E belongs to Q. No, there exists no element E belongs to Q such that A star E equals to A equals to E star A for all A belongs to Q holds. Since there exists no element E belongs to Q such that A star E equals to A equal to E star A for all A belongs to Q holds. या तो इधर इसको लिख दो holds. Therefore, identity not exist for given operations any one of above 6.
ओके, ये जो 6 ऑपरेशन दिया हुआ है किसी के लिए आइडेंटिटी नॉट एग्जिस्ट फॉर गिवन ऑपरेशन एनी ऑन ऑफ अबव 6, किसी के लिए आइडेंटिटी नहीं है। ओके, इसके बाद आता है क्वेश्चन 11, बट क्या है आज क्लास थोड़ा कम लेना है मेरे को भी, स्कूल में काम है ना। वन क्वेश्चन ले लेते हैं 9, 10, बट इसको ले लेते हैं, ये 11 एंड 19 हो गया, 11 हो गया, ये 12 एंड 13 ऑब्जेक्टिव है, ये दोनों डिस्कस करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट टाइम क्लास लेंगे। ओके, नाउ टेल मी, टुडे आई हैव सम वर्क इन स्कूल, ओके, एट 9:30, सो 10 मिनट पहले क्लास बंद करूंगा, क्लियर है। नाउ दिस इज क्वेश्चन 12, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई। फर्स्ट है फॉर एनी आर्बिट्री ऑपरेशन स्टार ऑन, फॉर एनी आर्बिट्री ऑपरेशन मतलब कोई भी बाइनरी ऑपरेशन ले लो अपने से, उसके लिए क्या ए स्टार ए इक्वल्स टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एन, दिस इज ट्रू और नॉट, ट्रू फॉल्स बताना है। सेकंड में इफ स्टार इज कम्यूटेटिव, एक ऑपरेशन दिया है जो कम्यूटेटिव है, देन ए स्टार बी स्टार सी इक्वल्स टू सी स्टार बी स्टार ए, ये ट्रू है क्या, ट्रू फॉल्स बताना है। सो फर्स्ट क्या है इसमें 12 का फर्स्ट का डिस्कशन में क्या होगा, ट्रू होगा कि फॉल्स होगा। टेल मी एनी ऑन ऑफ, क्या आइडिया मिलता है कि लग रहा है कि होगा, टेल मी। तुम लोगों में से कोई बताओ कि ट्रू होगा कि फॉल्स होगा। देखो एनी ऑपरेशन अपने से डिफाइन कर लो कोई ऑपरेशन, और ये होगा जो लिखा हुआ है, सेट है नेचुरल नंबर, सोल्यूशन सेट क्या है, सेट इक्वल्स टू व्हाट, एन, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है ना, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ओके, गिवन सेट नेचुरल नंबर दिया हुआ है, और ऑपरेशन क्या दिया, ऑपरेशन कुछ दिया नहीं है, ये बोल रहा है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे कोई ऑपरेशन बाय आर्बिट्री मींस व्हाट, स्टार इज फॉर एनी आर्बिट्री बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सो सेट ऑफ नेचुरल नंबर ये है। अब एनी आर्बिट्री बाइनरी, आर्बिट्री मींस एनी टाइप ऑफ ऑपरेशन यू कैन कंसीडर ऑन द सेट, कोई भी ऑपरेशन कंसीडर करो, उस ऑपरेशन के लिए ये ट्रू है कि नहीं है ये पूछ रहा है। नेचुरल नंबर का कोई भी एलिमेंट ले लो, ए स्टार ए इक्वल्स टू ए होगा, दिस इज ट्रू और फॉल्स फॉर एनी बाइनरी ऑपरेशन। ये तो बहुत सिंपल है, आंसर बताओ, कोई ना कोई बताओ मेरे को, सही होगा कि गलत होगा, फॉर ट्रू और फॉल्स फॉर एनी बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन यू कैन डिफाइन फ्रॉम योर सेल्फ, फॉल्स होगा ना भाई, हम कुछ भी डिफाइन कर ले ऐसा होना जरूरी थोड़ी है। हम डिफाइन कर लिए सपोज ए स्टार बी इक्वल्स टू व्हाट, ए माइनस बी, ठीक है। अब क्या करें, दोनों जगह पे ए ले ले, ए के जगह भी ए ले ले और बी के जगह भी ए ले ले, सेम ले ले। सो क्या होगा, ए माइनस ए इक्वल्स टू 0, 0 डज नॉट बिलोंग्स टू एन, नहीं है 0 डज नॉट बिलोंग्स टू एन नहीं बताना है, ए माइनस ए इक्वल्स टू ए आना चाहिए, नहीं होगा बिकॉज ऐसा दिखना चाहिए। क्या ये ट्रू है किसी भी ऑपरेशन के लिए, अगर हम ये ऑपरेशन डिफाइन करेंगे तो ट्रू नहीं है, सो दिस इज फॉल्स। ओके, सो कैसे रीजन एग्जाम कैसे देंगे इसका आंसर, फॉर द बाइनरी ऑपरेशन, कोई भी ऑपरेशन, ए माइनस बी नहीं है, ए इंटू बी भी कर सकते हैं, ए बी स्क्वायर भी कर सकते हैं, कुछ भी, फॉर एनी बाइनरी ऑपरेशन, फॉर द बाइनरी ऑपरेशन स्टार एज मतलब हम अपने से डिफाइन कर रहे हैं कि ए स्टार बी इक्वल्स टू ए माइनस बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, we see that what we see that on taking, because दोनों को सेम लेना पड़ेगा ना, on taking a equals to b
इक्वल्स टू 2, सपोज दोनों सेम ले ले, तो क्या होगा, ए स्टार बी इज इक्वल्स टू व्हाट, ए स्टार ए व्हाट 2 स्टार 2 इक्वल्स टू 2 minus 2 equals to 0 is not equals to 2, because a b equal to 2 है ना, 2 के इक्वल नहीं है, therefore false हो गया। सेकेंड नंबर का क्या होना है, सेकेंड नंबर ट्रू फॉल्स होना है कि नहीं, मतलब ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, टेल मी, फॉर टुडे दिस इज लास्ट क्वेश्चन, टेल मी, ओके, क्या होना है, is star is commutative binary operation if star is a commutative, मतलब बाइनरी ऑपरेशन दिया हुआ है, एक ऑपरेशन दिया हुआ है जो कम्यूटेटिव है, सो ये जो लिखा हुआ है ट्रू है या फॉल्स है, क्या प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल्स टू सी स्टार बी स्टार ए, ये जो इक्वलिटी है दिस इज ट्रू और फॉल्स, अगर स्टार कम्यूटेटिव है तो, क्या लग रहा है तुम लोगों को, बताओ, हेलो टेल मी प्लीज, कोई तो बोलो, ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, एनीवन रिप्लाई मी, सर ट्रू होगा, ट्रू, बिकॉज कॉम्पिटिटिव यूज कर लेंगे राइट हैंड साइड में तो सेम दिख जाएगा ना दोनों, ये इक्वलिटी प्रूव करना है, सो हियर राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, सी स्टार बी स्टार ए, पहले सी स्टार बी स्टार ए लिखा हुआ है, अब राइट साइड इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड दिखाना है, अब सी स्टार बी को हम क्या लिख सकते हैं, बी स्टार सी, यूज क्या किया इसको, ये जो सी स्टार बी को बी स्टार सी क्यों लिखा, सिंस स्टार इज कम्यूटेटिव, सिंस स्टार इज कम्यूटेटिव, ये तो गिवन है, दिस इज गिवन, ओके, नाउ दिस इज इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड, देखो ये सी स्टार बी इक्वल्स टू बी स्टार सी किससे लिखा, कम्यूटेटिविटी से, अब इस लाइन से इस लाइन को कैसे लिखा हमने, वो भी कम्यूटेटिविटी से, बिकॉज दिस इज सिंगल एलिमेंट, दिस इज सिंगल एलिमेंट, सो ये दोनों फिर से इस स्टार के लिए कम्यूटेटिविटी लगाया, सो ये इधर आ जाएगा, बी इधर चला जाएगा, अगेन सिंस स्टार इज कम्यूटेटिव, because it is given, ये given है commutative, so right hand side equal to left hand side, so true, आंसर क्या होगा, true, so first one was what, false or a true, okay, this is question 12, now one more objective question is there, इसको भी डिस्कस करके खत्म कर देते हैं, ठीक है ना, so this is the question, last question suppose 13, so tell me answer, ये बाइनरी ऑपरेशन देखो क्या दिया, a स्टार b इक्वल्स टू a क्यू प्लस b क्यू, चूज द करेक्ट आंसर, सो a b c d में से कौन सा सही है, टेल मी, ट्राई करो, क्या होगा आंसर, हेलो, which is correct, इसमें ओनली कम्यूटेटिविटी एंड एसोसिएटिविटी दिया है, बोथ कम्यूटेटिव एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव, एसोसिएटिव बट नॉट कम्यूटेटिव, नाइदर कम्यूटेटिव नॉट एसोसिएटिव, क्या होना है बताओ, सिंपल है, बिल्कुल सिंपल, गिवन a star b equals to what, a q plus b q for all, ab belongs to what is the set, natural number, is it commutative or not, commutative होगा कि नहीं, हेलो, yes sir, होना है commutative,
वेरी क्लियर है, कोई भी नेचुरल नंबर ले लो, ए क्यू प्लस बी क्यू लिखो या बी क्यू प्लस ए क्यू लिखो, बिकॉज दिस इज आल्सो नेचुरल नंबर, दिस इज आल्सो नेचुरल नंबर. सो इन नेचुरल नंबर वी नो कम्यूटेटिविटी होल्ड. सो यहाँ पर इसी ऑपरेशन में हम इसको ये भी लिख सकते हैं, बी क्यू प्लस ए क्यू, वेयर ए बी बिलोंग्स टू एन. ये ए बी बिलोंग्स टू एन, इसीलिए ऐसा लिख सकते हैं. सो दिस इज इक्वल्स टू बी स्टार ए. देयरफॉर कम्यूटेटिव, स्टार इज कम्यूटेटिव. और एक टेस्ट करना है, एसोसिएटिव है कि नहीं है, बिकॉज यहाँ पर एबीसीडी 4 ऑप्शन है ना, इनसे एक कम्यूटेटिव है. इसमें बोथ एसोसिएटिव भी टेस्ट करके देखना है ना कि एसोसिएटिव है कि नहीं है. इज इट एसोसिएटिव और नॉट? सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर के लिए एसोसिएटिव है कि नहीं देखना है. We can see that 1 star 2 star 3 is equals to and 1 star 2 star 3. So tell me, जल्दी वैल्यू बता दो, फिनिश क्लास आज. 1 star 2 star 3 ये वैल्यू क्या होना है? 1q प्लस 2q क्या हो रहा है? 1q plus 2q equals star 3. What? 1q plus 2q, 8 plus 1 9. 9 star 3 equals to 9q plus 3q. ये वैल्यू है. यहाँ पर 1 star 2q plus 3q equals to what? 2q means 8, 3q means 27 into 8. 3q, 3 into 3 9, 27, 27 into 8. Two 1 6. So here 1 star 2 1 6. So 1q plus 2 1 6q. ये दोनों इक्वल नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है. और राइट हैंड साइड यू कैन सी, अगर इसकी वैल्यू निकाल भी दे सेम नहीं होने वाला. देयरफॉर स्टार इज नॉट एसोसिएटिव. सो व्हाट इज द आंसर? ए बी सी डी में से कौन सा आंसर होगा? टेल मी. ऑप्शन बी इज करेक्ट ना? सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. कॉम्यूटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव. ओके, सो आज क्लास अभी यही खत्म कर रहा हूं, है ना.